हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता एज इट इज के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 6। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदेवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्तेव स्थिताः प्रमुख्य धार्तराष्ट्राः। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदेवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्तेव स्थिताः प्रमुख्य धार्तराष्ट्राः। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का एक महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। The second chapter of Bhagavad Gita is known as the summary of Bhagavad Gita. It has the complete analysis of Arjun's mind. Arjun is perplexed that what he should do and what he should not. To understand Bhagavad Gita, we need to identify ourselves with Arjun, and then we are eligible to understand the knowledge of Bhagavad Gita. Dhritarashtra became very happy when Sanjay told him that Arjun, with tearful eyes,
sat down on the chariot and is not willing to fight, which means Dhritarashtra will continue to be the king and his son Duryodhan will become king of Hastinapur after him. But in the very next moment, Sanjay said that Madhusudan is with Arjun. Arjun can become weak and may not be willing to fight, but Sri Krishna is with Arjun, who is the killer of the demon Madhu, who was much more stronger than Kans. So, Madhusudan will not allow Arjun to remain weak and not perform his duties. Sri Krishna used very strong words like impotent and miser for Arjun to shake him from his weakness and addressed Arjun as Uttisht Parantap, which means get up, O killer of your enemies. For us, it's important to know that why Sri Krishna is forcing Arjun to fight when he doesn't want to fight and kill his grandfather Bhishma, Guru Drona and his cousins. Srila Prabhupada explains that the main duty of a Kshatriya is to rule. It was an understanding between the Pandavas and the Kauravas that in case of an external attack on Hastinapur, they will unite and become 105 and fight with the enemies of Hastinapur. But here the fight is within the family, that is, the 100 Kauravas and 5 Pandavas are standing against each other on the battlefield of Kurukshetra. Before the war, Sri Krishna himself went as a peace messenger to Hastinapur and tried his level best to persuade Duryodhan not to fight with his own cousins and give them only 5 villages. But Duryodhan said that without fighting, he will not give them land equivalent to a point of a needle. Then there was no choice left for the Pandavas. Kshatriya's main occupation is to rule, as it is their swadharma. Arjun is unable to take any decision as he is doubtful about his winning or being defeated. And even if he wins after killing his opposition, then too he will become unhappy after killing his own people. So both ways he will remain unhappy, and this is why he thinks that he shouldn't fight. Arjun's mind is filled with doubts and confusions, and such state of mind is known as a diseased mind, and it needs a treatment by a doctor. Like when a child is unwell and the mother gives the medicine to the child for the good of the child, but if the child doesn't take the medicine, then the mother puts the medicine in the mouth of the child and then closes the nose of the child, and this is how the child swallows the medicine. Similarly, Krishna is both our father and mother. He is our original father and mother, and he exactly knows which way to give us the medicine when we do not fulfill our duties. जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने शत्रुओं के प्रति करुणा दिखा रहे थे और किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निश्चित न कर पाना। तब श्री कृष्णा ने अर्जुन को अनार्य कहकर संबोधित किया। श्रील प्रभुपाद अनार्य का
हमें अर्थ समझाते हैं कि अनार्य वह व्यक्ति होता है जो अपने भौतिक कार्यों को तो भली भांति करता है, लेकिन उसे आध्यात्म का ज्ञान नहीं होता है। आध्यात्म अर्थात आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसमें यह हृदय की दुर्बलता कहां से आ गई, जो कि एक क्षत्रिय का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन 5 कारणों की वजह से युद्ध नहीं करना चाह रहा था। पहला कारण है करुणा। अर्जुन के हृदय में इतनी करुणा थी, जो कि एक भक्त का परम लक्षण है। दूसरा कारण है भोग। अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध के बाद अगर वह जीत भी गया तो अपने जीत की खुशी वो मनाएगा किसके साथ? सभी तो समाप्त हो जाएंगे युद्ध में। तीसरा कारण है, अर्जुन सोच रहा है कि वह अपने सगे संबंधियों को मारने से वह पाप का भागीदार बनेगा। चौथा कारण है, अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध में कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि जब घर के वयस्क नहीं रहेंगे तो कुल धर्म और जाति धर्म कौन सिखाएगा अगली पीढ़ियों को। ये चारों कारण पहले अध्याय में हैं और इस अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि परिवार के गुरुजनों को वह कैसे मारेगा, जिनको वह बहुत प्यार और सम्मान करता है। उनको मारने या हराने के स्थान पर अर्जुन भीख मांग कर रहना श्रेयस्कर समझता है। यह 5वां कारण है युद्ध न करने के लिए। अर्जुन की ऐसी परिस्थिति इसलिए है क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं होने का वह अभिनय कर रहा है। हम सबको भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाने के लिए अर्जुन तो गुणाकेश है और अर्जुन ने तो निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त किया है। वह परंतप भी है। परंतप का अर्थ है कि वह अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन सिर्फ हम सबको भगवत गीता का ज्ञान मिले, इसलिए अर्जुन यह अभिनय कर रहे हैं कि उन्हें यह तत्व का ज्ञान नहीं है कि वह आत्मा है या शरीर है। अर्जुन अपने आप को और अपने संबंधियों को शरीर मान रहे हैं और उनके न रहने की बात को सोचकर अत्यंत भयभीत हो गए। जब अर्जुन कुछ भी निश्चय करने में असमर्थ हो गए, तब वह श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात अब मैं कुछ भी सोचने के लिए सामर्थ नहीं है और मैं आपका शिष्य हूं। यहीं से अर्जुन की सोच में परिवर्तन आता है। यह श्लोक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है भगवत गीता को समझने के दृष्टिकोण से। जब तक हम गुरु की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हम भगवत गीता को सही मायने में समझ नहीं पाएंगे। श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं गुरु के महत्व को। जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, लेकिन जब तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, तब तक अर्जुन अपने मन की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सके और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने में असमर्थ थे। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु हैं और भगवत गीता यथा स्वरूप या एज इट इज भी है। सिर्फ देर है तो बस शरणागति की है। अर्जुन की तरह हमें सिर्फ शरण ग्रहण करना है
और फिर सभी समस्याओं का हल भगवत गीता में है। मैं सभी सुनने वालों को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी मेरे साथ भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और अन्यों को भी इस दुर्लभ ज्ञान को भेजिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य जीवन में हमें आत्मज्ञान हो और हम दूसरों की भी मदद करें, और यह सिर्फ भगवत गीता के माध्यम से हो सकता है। हरे कृष्ण। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के 8वें और 9वें श्लोक को लेकर। तब तक के लिए हरे कृष्ण।